Screen is visible and voice is audible, Shvangi? Siddharth? I'm starting. See, in the third unit, till now we completed the air pollution and effect of air pollution, water pollution sources. Today we are, in the last class, we started with the sustainable wastewater treatment. Fine. So now we will move further for this. बेसिक मीनिंग तो बता ही दिया था कि पर्टिकुलरली व्हाट वी मीन बाय सस्टेनेबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मीन्स द वाटर विच इज कंटिन्यूअसली wasting and it is harmful and will affect people health. So how to treat, process it, or how to perform treatment in that, so that particularly it can be useful and not harmful for the people. So wastewater treatment is nothing but the partial reduction or complete removal of excessive impurities that is contained in a wastewater. And usually it is the mean the reduction or the removal of the solids from wastewater, since impurities generally जो रहती है वो solid form में ज़्यादा रहती है in spite of gaseous or the liquid form. So generally उन impurities को हटाना, और वैसे तो वो वेस्ट वाटर ही है, but just try to remove certain part of impurities so that it cannot be harmful for the field areas like जहाँ हम खेती वगैरह करते हैं, और for the people or human being who are living nearby places where wastewater is going to discharge. Usually you will find like in a railway station nearby area, so many like below poverty people used to be there, and see the place where they are living, and outside of their home some nala sort of and very smelly place used to be there. So whatever waste of all particular cities are going to exit there, and how much harmful for them. Aren't they are human being? Yeah, no, they are human being also. So it is the humanity to save their life also and make them safe. ठीक है. सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं जनरली सोर्सेज एंड इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सो द पर्टिकुलर वेस्ट इट इज डिफाइंड like rubbish, trash, refuse, garbage, junk, like unwanted or useless material, you can say those used to be the solid waste. Any material unused and rejected as worthless or unwanted, a particular useless or a profile-less activity जो रहती है, that is using or expanding or consuming thoughtlessly or carefully. ठीक है. सो पर्टिकुलरली ये जो सॉलिड इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट है, या व्हाट वी मीन बाय सॉलिड वेस्ट, नॉन लिक्विड नॉन सॉल्युबल मटेरियल्स that is ranging from municipal garbage to industrial waste that contain the complex and sometimes hazardous substance. I just suggest you to write down this. This is a important one कि solid waste क्या है और ये कहाँ कहाँ से हमें मिल रहा है. And mainly this solid waste include garbage, rubbish, demolished products, sewage treatment residue, dead animals, manure and other discarded materials and all. ठीक है, लिख लो. I am giving you 2 minutes. Then we'll move further.
zero waste concept later on we'll do. Now we see the thorough how this wastewater treatment and everything is going on. See, we started in the last class कि पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वेस्ट जो रहती मतलब वेस्ट वाटर जो है, एक तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, and as far as its treatment is concerned, it is further classified in three manner like physical unit operation, chemical unit process and biological unit process. ठीक है. So physical unit process या physical unit operation की जहाँ तक बात होती है, so that is the application of physical forces to treat sewage. Physical unit operation basically includes screening, mixing, flocculation, sedimentation, flotation, vacuum filtration, heat transfer and drying. Whereas my unit processes like treatment in the removal of pollutants by the addition of chemicals or the use of biochemical mass and this. I think ये मैंने complete करा दिया था. Even chemical unit process का भी मैंने तुम्हें time दिया था कि write down what we mean by chemical neutralization. मैम बायोलॉजिकल भी हो गया था. Yes, हाँ, अपन को शायद नीचे हाँ ट्रीटमेंट प्रोसेस से स्टार्ट करना है कि केमिकल न्यूट्रलाइजेशन, कॉग्निनेशन, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, ये मैंने तुम्हें लिखने को भी बोला था शायद. And I gave you sufficient time, so we are moving further. Chemical unit के disadvantages थे. फिर biological unit में pollutants को how we can remove by biological activities like microorganism and all. So biodegradable organic substances converted into the gas that escape the atmosphere and cell tissues are removed by the tree. ठीक है. इसमें suspended growth process क्या है, attached growth process that we did. Even though I told you to take the screenshot of this diagram also, that is a conventional treatment plant. जो बिल्कुल नैरो लाइन है वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक थी, सेकेंडरी सेटलिंग इज बिट हायर, डैश्ड एज इज अ स्लज फ्लो, गैसेस आर दिस एंड वेस्ट वाटर फ्लो जो हो रहा है, ये जो एरो है, ये जो एरो यहाँ तक आ रहा है, ये वेस्ट वाटर फ्लो है. तो ये बार स्क्रीनिंग होकर फिर ग्रिड चैम्बर में जाता है, देन ऑयल एंड ग्रीस टैप से होते हुए PST, that is a primary settling tank, biological unit, biological operation used to be performed, then it moved to secondary settling tank, disinfected water is going to be here for final disposal. So disinfected hai, but then also it is not drinkable. That is again a waste or it can be used for other purpose, but here suppose वो less harmful हो जाता है, जितना harmful वो इंडस्ट्री से निकल कर या solid waste के फॉर्म में रहता है वैसा नहीं रहता. In between this is a process of sludge, beds and all. This is oil grease and all. ठीक है. Now यहाँ से हमें start करना है. That is a treatment system. The system of combination used for the from the available unit operations and process for the treatment. ठीक है. Normally waste water plant जो designed होते हैं like primary treatment system है, secondary treatment system है, territories, ये तीनों नाम लिख लो तुम लोग, है ना. ठीक है. Write down these three name. ठीक है. कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको हमने फर्दर इस तरह से किया हुआ है, दैट इज PTS, STS and TTS. That is a primary treatment system, secondary treatment system and tertiary treatment system. ठीक है. What are these treatment? Actually wastewater treatment is also, I must say, an important topic to be come in exam, but ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाए, don't expect this. And I again and again telling you, go through the net and see the last year जहाँ पर भी sustainable engineering चलता था वो papers देखो. Very like current moving questions based on sustainable engineering used to be asked. इसीलिए कह रही हूँ ये वाला अगर पूछ लिया जाए तुमसे, ड्रॉ द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लान
for the wastewater treatment. Draw the schematic flow diagram of conventional treatment plant. So that you need to draw this. Okay. नाम लिख लिए. Then we start with the primary treatment system. See, it is a bit theoretical, but yes, of course, 4th unit पे आ गए हैं. ज़्यादा अपना बचा भी नहीं है. मेरा मोटिव वैसे तो तुम्हारा लास्ट वर्किंग डे तो दिसंबर में है, बट आई विल ट्राई टू मेक यू फ्री लाइक एज टाइम परमिट्स. अभी तो तुम्हारे मिड टर्म की डेट भी 21 सितंबर आ रही है और तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम की डेट भी उसके आसपास ही आ रही है. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, बट अपनी तैयारी रखो, है ना. ठीक है बेटा. ओके, वेयर वी वर नाउ. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग. जब भी मैं तुम्हें टाइम देती हूँ कुछ नोट करने के लिए, इफ यू कंप्लीट देन प्लीज इन्फॉर्म मी ना. इट्स अ जनरल कर्टसी. प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम जो रहता है उसमें क्या होता है बेसिकली, mainly this is a process to mainly selected this process to remove floating material. हर 3 ये जो कैटेगरीज हैं इसमें हमने अलग अलग उसको क्लासिफाइड कर दिया है. फर्स्ट में फ्लोटिंग मटेरियल्स एंड लार्ज इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर्स जो रहते हैं वेस्ट वाटर के, दैट इज यूजुअली कॉज मेंटेनेंस और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वो हम इसमें लेते हैं. और आपका pre-treatment is a common treatment system in this. What is this? We'll soon let you know. और sum and pump unit, approach channel, ये डायग्राम है, ये बना लो. बनाने को मैं इसलिए कह रही हूँ तुम्हें ताकि यू विल लाइक अगर मिड टर्म वगैरह या कहीं पर भी पूछ लिया जाए, सो एटलीस्ट तुम क्लास अटेंड करते टाइम बना रहे हो, कुछ तो तुम्हें ध्यान रहे. पहले ये बनाओ, फिर अपन ऊपर का डिस्कस करेंगे क्या क्या. देखो ये स्लम एंड पंप हाउस, ये पूरा एक एक इंडिविजुअल यूनिट इन्होंने डिस्कस किया, बट पहले तुम बनाओ. ये फिर अप्रोच चैनल है, ये बार स्क्रीन है फॉर स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर फॉर ग्रिड्स, देन पार्शियल फ्लूम और अदर वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस. ठीक है. स्कीमिंग टैंक है, ये ऑप्शनल रहता है, लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा. इट इज फॉर ऑयल एंड ग्रीस. इफ्लुएंट फॉर डिस्चार्ज और फर्दर ट्रीटमेंट. ठीक है. हाँ बेटा, हो गया. ठीक है. तो अब इसमें ये सम एंड पंप हाउस है, बार स्क्रीन है, ये क्या फंक्शन करते हैं. सी, sum and pump unit is town waste water is usually collected in this tank and it pumped to the higher level of treatment units. ठीक है. फिर अप्रोच चैनल है, ये वाला जो चीज है ये अप्रोच चैनल है. So this approach channel is to convey and dampen the flow of wastewater pumped to treatment plant units. Then screen chamber क्या करता है, लार्ज साइज ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल्स जो रहते हैं उसको ये स्क्रीनिंग कर देता है. ग्रिड चैम्बर इज टू रिमूव द सस्पेंडेड सेटलेबल सॉलिड्स एंड स्कीमिंग टैंक फाइनली रिमूव एक्सेसिव ऑयल ग्रीस फ्रॉम द वेस्ट वाटर. See, this whole process is going to be here. At least you just write the name and
डू इन अ शॉर्ट, रिमूव लार्ज साइज फ्लोट, सस्पेंड लैप, पूरी लाइन लिखने के बजाय जैसे ये सम एंड पंप यूनिट है. सो यूजुअली कलेक्टेड, ये टैंक किसके लिए यूज हो रहा है? और जो भी वेस्ट वाटर है उसको कलेक्ट करके हायर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट में ये भेज रहा है. दैट इज द ओनली वर्क. ठीक है, इज इट क्लियर? इस तरह से हमारा प्राइमरी जो ट्रीटमेंट सिस्टम होता है वो इस तरह से वर्कआउट करता है. तो ये वाली चीज स्टोर के लिए है. उसके बाद अप्रोचेबल चैनल से यहाँ जाके स्क्रीनिंग हो रही है इसकी, फिर ये अनडन. ठीक है, ऑयल और ग्रीस वाला ऑप्शनल है. अगर जो वेस्ट वाटर है उसमें ऑयल और ग्रीस नहीं है तो इसको मैं हटा सकती हूँ. ठीक है, सो बेसिकली दिस ट्रीटमेंट इज यूज फॉर व्हाट? दैट रिमूव द सॉलिड एंड सम ऑर्गेनिक मटेरियल. And this particular system is for the screen chamber. It will remove most of the large floating material, will separate most of the heavy suspended solids, and it can reduce 60 to 70% of fine settleable suspended solids. Okay. In a conventional treatment plant, settling suspended organic material that is removed by PST. ठीक है, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ये है. और कोलाइडल एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंटेंट जो रहते हैं वेस्ट वाटर के, मतलब पीएसटी जो है या प्राइमरीली जो हमारा ये है सेडिमेंटेशन टैंक कह लें या ये ट्रीटमेंट, ये जनरल इनिशियल प्रोसेस के लिए ठीक है. लेकिन अगर कुछ हमारे पास कोलाइडल सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं तो वो हमारे प्राइमरी से नहीं होंगे. उसको रिमूव करने के लिए हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूज करना पड़ता है. एंड दिस इज दैट. नाउ व्हाट यू डू, ये यहां तक का जो सर्किट है सी, ये तो तुम्हारा पीएसटी है. सो व्हाट यू डू, पहले तो बना लो, जैसे एक डब्बा बना के लिख दो पीएसटी, और उस ये जैसे यहाँ किया है. देन पीएसटी का जो भी है सारी चीजें ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए जा रही है. प्राइमरी सर्वेलेंस फॉर द ट्रीटमेंट. सो ये तो तुम्हारा ये सिस्टम हो गया. अगर कहीं सेकेंडरी ट्रीटमेंट का भी आएगा तो ये पीएसटी इसको हटा के पूरा बना के और फिर लिख सकते हो सेकेंडरी ट्रीटमेंट फॉर दी डिस्पोजल. दैट हैज बीन डन. ठीक है, तो आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज टू बी हियर बिकॉज बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक प्लेस. क्योंकि हम किन चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लाइक कोलाइडल एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंटेंट्स की. ठीक है, microorganism, primary bacteria that is going to convert biodegradable organic matter content. ठीक है, oxygen level in the wastewater that will change in the order to produce aerobic and anaerobic material environment. ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है. बट यस ऑफकोर्स तुम ये लिख सकते हो कि जो चीजें इस तरह की हैं जो इसमें रिमूव नहीं हो रही है उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजते हैं. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट दैट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल टू कंटेन वेस्ट वाटर, जो कि वो डिजोल्व हो जाए बायोमास के फॉर्म में. ठीक है, नाउ इससे 85% तक सस्टेनेबल सॉलिड जो रहते हैं बीओडीज दैट कैन बी रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, दैट्स इट. नाउ एक्सटेंडेड, इसमें जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फाइन बबल डिफ्यूज एयर एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम. इतना डिटेल में तो नहीं आएगा बट यस ऑफकोर्स यू मस्ट नो कि सेकेंडरी जो पर्टिकुलरली तुम्हारा ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, हाउ द थिंग्स आर परफॉर्मिंग. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अ टेरिटरी ट्रीटमेंट सिस्टम. सो व्हाट वी मीन बाय टेरिटरी सिस्टम, दैट इज अगेन आपका एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम. एंड दिस ट्रीटमेंट इज रिड्यूस basically used for what? So this treatment is basically used to reduce and remove the concentration of residual impurities in the wastewater from secondary treatment system. मतलब जो secondary treatment system से भी the particular wastage which is not like removed that can be removed here. And the major purpose of this
is to reduce nitrogen and phosphate. ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस. आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम फॉर दैट ऑल्सो. टेरिटरी का मेनली रीजन जो है या पर्पज है रिड्यूस नाइट्रोजन एंड फास्फेट दैट कैन कॉज serious problem that can get into the water body by enhancing the growth of algae blooms. तो टेरिटरी ट्रीटमेंट सिस्टम जो है उससे हम ये पर्टिकुलरली रिमूव कर सकते हैं. सो हाउ यू आर फाइंडिंग डिफरेंस स्टूडेंट्स? लाइक प्राइमरी में हमारा जो वेस्ट वाटर में जो भी सॉलिड थे वो हम उसको स्क्रीनिंग और आइलिन ग्रीस हटा रहे थे. फिर कुछ इनसॉल्युबल कोलाइडल पार्ट्स हैं दैट इज रिमूव बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट. नाउ फाइनली जो नाइट्रोजन फास्फेट केमिकल गैसियस फॉर्म वाली चीजें हैं वो जो उसमें रहती है जो कि हमारे हार्मफुल रहती है काफी ज्यादा, तो उसको हम किससे रिमूव कर रहे हैं? दिस. ठीक है. नाउ टेरिटरी सिस्टम प्रोवाइड बेसिकली 3 थिंग्स. ये लिख लिया कि तुम लोगों ने? ये वाला पैरा लिख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट. सब बैठो तुम, मेरी क्लास 5 मिनट में कंप्लीट. ठीक है. टेरिटरी ट्रीटमेंट सिस्टम जो है पर्टिकुलरली क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर है that is incorporated for final disposal requirement. Secondly, the concentration of leftover organic materials. See, first of all, by primary treatment, we just sorted out the solid wastage and grease and oil. In a secondary, colloidal materials are there. Remaining organic material या suspended solid जो रहते हैं, that removed by this. Concentration of leftover nutrients is high for final disposal or reuse of wastewater. So this territory treatment is high priced and it is normally employed for the treatment of industrial waste. Okay. Now comes sustainable wastewater treatment. ये मैं next class में बताऊंगी तुम्हें. And I don't think this again and again need to inform what is sustainable. That is a green technology developed and the application of the products and efficient for generation to have a good environment. एडवांटेज ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, एप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं. सो अभी अपन ने जो ट्रीटमेंट्स देखे अब वो थे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. नाउ सस्टेनेबल ट्रीटमेंट सिस्टम दैट इज लैगून्स एंड वेटलैंड्स, एनॉर्बिक डाइजेशंस, सॉइल एक्वायर्ड ट्रीटमेंट्स. ये आउटसाइड अदर कंट्रीज में ये ट्रीटमेंट्स यूज किए जाते हैं. हाउ दे आर डूइंग and this thing we will do in our next class. Yes, of course, wastewater treatment itself is a huge topic, but after seeing the last year papers and everything beta, I need to go through in a such a detail. ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो इसको अपन को करना है इतने डिटेल में. Now please give your attendance. I will upload these lectures after lunch or whenever I get time. Na Achal? Achal present, ma'am. Yes, Mandir present, ma'am. Shivangi, Siddharth? Present, ma'am. Vandana? Yes, ma'am. Vandana present. मैम पता नहीं चला, फोन चार्ज पे था तो. अच्छा चलो, ओके, सी यू टुमारो. कल भी क्लास मॉर्निंग में है क्या? हाँ बेटा, कल भी मॉर्निंग में ही अपनी लाइक यही टाइम रहेगा तुम्हारा 10:30 के बाद ना. ठीक है. और Okay, कल भी और परसों मतलब 3 डेज अपना यही रहेगा. Okay, ma'am. है ना. और कंटिन्यूएशन में ही मैं लूंगी. थर्सडे जरूर बालाजी सर का मैसेज आ जाता है, उनको पहले लेनी रहती, तो थर्सडे की लैब का आई विल इन्फॉर्म यू. ठीक है. ओके, और एग्जाम्स की तैयारी करो.